शुभमन, आप आए यहाँ पर 2 दिन तक आप लोगों ने अभ्यास किया। एक नई सीरीज आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, इंग्लैंड का चैलेंज कितना बड़ा। पिछले साल आप टेस्ट सीरीज में आए थे, बहुत लोगों ने बहुत बातें की थी, लेकिन टीम ऑलमोस्ट जीतने के करीब थी और फिर बराबर करके लौटी। ये वनडे सीरीज कितनी डिफरेंट है पिछली सीरीज से, या फिर अभी T20 सीरीज में जो चीज़ हुआ है उस लिहाज से? डेफिनेटली सर, काफ़ी डिफरेंट है। हमारी वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन है, जो हमारा माइंडसेट है कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन और जो साउथ अफ्रीका में हमको विकेट मिलेंगे वो इससे करीब होंगे जो हम यहाँ पे खेलेंगे। तो किस तरीके के कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर सकते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन हमारे लिए अच्छे हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारे लिए। शुभम, ये बताओ कि अनुभव जो होता है इंग्लैंड में खेलने का वो कितना काम आता है, क्योंकि जो T20 सीरीज में हुआ उससे चलते हुए यहाँ की जो बैटिंग ऑर्डर खास करके है, बॉलिंग भी अच्छी है लेकिन बैटिंग ऑर्डर इसमें अनुभव की कमी बिल्कुल नहीं है, तो वो कितने मायने रहेगी? सर, बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टीम में अगर एक्सपीरियंस्ड लाइनअप है, तो आई थिंक प्रेशर सिचुएशन में एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आता है। आप बिकॉज़ उस चीज़ में आप बहुत बार आप रह चुके हो और अच्छा भी कर चुके हो, बुरा भी कर चुके हो, तो आई थिंक वो एक सेंस ऑफ कामनेस आती है आप में जब आप में प्रेशर होता है। तो एक्सपीरियंस आई थिंक उस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लाइनअप में। Shubman, last year when India was here, you were coming into it as red ball captain. Many questions on Shubman Gill, the captain. And at the end of the series, a lot of those questions had been answered. Fabulous series, 700 runs, 2-2. This time when you're coming here again, Shubman Gill as white ball captain with the 50 overs. So how are you looking at it as leader of this team, which is coming off not a good run in the other format? And part two of this is this particular ground. Last year after Leeds, we were down. This ground, incredibly good test match. You won 200s, Akashdeep scoring 10 wickets and all of that. Does that kind of give you that, okay, this ground has good memories for us? Do you take that as well? Yes, definitely. I think in any ground, in any stadium, when you do well, there is a sense of positivity when you enter the stadium. The vibes that you feel, there are certain memories that come to your mind, and those memories are freshened up. So there's a sense of positivity that I felt coming into this stadium. And what was your first The leadership, you as Definitely, it's very important. I think any series that we play from here on as a group, as a captain, is going to be very important for me. All the learnings that I'm gonna have and all the experience that I'm gonna have leading up to the World Cup is gonna be very crucial. Just want you to talk about a few of the senior players, starting with Rohit and Kohli. They're going to be vital for you, I'm pretty sure, leading into the 27 World Cup. Ajit Agarkar had said that we need to kind of stop putting these guys on trial every series they come and play. But how important are these two guys, keeping 27 in mind? And the other guy I want you to talk about is Jasprit Bumrah, who I think has not played since the 23 World Cup final. So I think Virat Bhai and Rohit Bhai, they have been the backbone of Indian batting lineup for the past decade, and they remain a very integral part of our team. And the experience and the skill that they bring to the team is obviously very valuable. We have seen what they have done over the past decade in different conditions, repetitively, consistently, a number of matches, different tournaments, different occasions. And yes, Mumbai is coming into the setup, after a bit of time, and hopefully, he's had a good number of overs leading up to this one-day series, and hopefully this one-day series goes well for him, and we end up the series, hopefully win the series and end up on a high.
फिट रहता है रोहित। Hi Shubhan, आपने अभी कॉम्बिनेशंस की बात करी गोइंग इनटू द 2027 वर्ल्ड कप, तो अभी इस टीम में आपको लगता है कि एक कोर जो है वो सेटल्ड है या फिर अभी काफ़ी कुछ गुंजाइश है कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की, या फिर कोई कंसर्निंग एरियाज आपको लगता है जिस पे फोकस रहेगा टीम का आगे जाते हुए? सर ऐसे कोई कंसर्निंग एरियाज तो नहीं लग रहे हैं, बट यू नो ऐसी सीरीज़ में और ऐसा भी नहीं लग रहा कि अनसेटल्ड 11 है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू, जो प्लेयर्स नए हैं उनको आप चांस देना पड़ता है, उनको एक्सपीरियंस देना पड़ता है। जैसे बात कर रहे थे एक्सपीरियंस की, कि जितना ज़्यादा वो प्रेशर सिचुएशन में और जितना ज़्यादा वो अच्छा करेंगे तो हमारे लिए वर्ल्ड कप के पहले उतना अच्छा होगा, ताकि इतने बड़े टूर्नामेंट में आप 11 मैच खेलते हो वर्ल्ड कप में, और आमतौर पर जितनी भी हम सीरीज़ खेलते हैं वो 5 मैच या 3 मैच की होती है, 3 मैच की होती है ज़्यादातर, तो 3 मैच खेलना और 11 मैच खेलने में बहुत बहुत फ़र्क होता है। वी वर अ बिट अनफॉर्चुनेट, सीरीज से पहले रेड्डी गॉट इंजर्ड, हर्षित राणा इज इंजर्ड, सो यू नो प्लेयर्स लाइक दीज वी वांटेड कि उनको जितने ज़्यादा मैचेस हम खिला सकें वर्ल्ड कप के पहले, जब उनकी बारी आएगी वहाँ पे दे फील सेटल्ड। सो इन दैट सेंस हमको लगा कि हम थोड़े अनफॉर्चुनेट है, ऑब्वियसली वो इंजर्ड हो गए तो अलग कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा। जो हम सोच रहे थे सीरीज़ के पहले एक प्लेइंग 11 या 12 खिलाने की, वो हम नहीं खिला सकते हैं इसमें, तो उस सेंस में वी वर फोर्स्ड टू मेक सम चेंजेस। बट ऐसा नहीं है कि अनसेटल्ड 11 है, बट ऑब्वियसली कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम चाहते थे कि हमारे प्लेयरों को और एक्सपीरियंस मिले ऐसी बड़ी सीरीज़ में। इंग्लैंड की सीरीज़ हो गई या आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, तो ये बड़ी सीरीज़ में अगर प्लेयरों को ज़्यादा चांस मिलता तो आगे जाके जब भी प्रेशर वाली सिचुएशन आएगी तो उतना ही उनको अच्छा चांस मिलेगा परफॉर्म करने का। First of all, your reaction on the India's women's victory in Lord's, it's an historic win. So first reaction on that, and the second part is that आपने अपनी बैटिंग पोजीशन छोड़ी और यशस्वी को वहाँ पर मौका दिया है। ये इस टीम के सेल्फलेस नेचर के बारे में क्या बताता है कि आप अपनी जो बैटिंग पोजीशन जहाँ पर आप लगातार इतने रन्स करते हुए आए हो, वाज दैट इजी फॉर यू कि अपनी बैटिंग पोजीशन किसी और को देना, मतलब टीममेट को देना, एंड देन coming at number 3 then again scoring runs? Is it easy, is it difficult, and ये क्या प्लान का पार्ट रहेगा आने वाले एक साल में जब तक वर्ल्ड कप स्टार्ट? Firstly, I think very proud moment for us, our women's team winning a historic match at Lord's, and I think we've all seen how special it is playing at that stadium. वहाँ पे खेलना कितना स्पेशल होता है और वहाँ पे जीतना कितना स्पेशल होता है। सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने बोला कि जो हमारा पूल है 15 या 20 प्लेयर का जो पूल है, जो लगता है कि हमको वर्ल्ड कप में आगे जाके खेल सकते हैं, तो उनको मैचेस देना, उनको एक्सपीरियंस देना आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, एंड आई डिडंट फील इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, यू नो। जायसवाल is a great player, and I felt in red ball I was batting at number 4 that I can bat at number 3 in ODIs and give someone a chance who's been in and out of the team. Very difficult for players जब वो सीरीज़ में होते हैं। Obviously हमारे पास रोहित भाई हैं, विराट भाई हैं, तो fortunately unfortunately विराट भाई नहीं थे उस सीरीज़ में, तो I think that was a good opportunity for us to give someone like Jaiswal a chance in that series. शुभन, हाय। इस यूके दौरे में अभी तक भारतीय टीम 7 में से 6 मैच गंवा चुकी है और T20I सीरीज के भी कई खिलाड़ी अब वनडे सीरीज का हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि ये हार का सिलसिला वनडे सीरीज में भी इम्पैक्ट डाल सकता है? और पार्ट 2 ये है कि आपने परसों हमने देखा विराट कोहली के साथ प्रैक्टिस सेशन के वक्त आपकी काफ़ी लंबी बातचीत हुई, अगर आप उस पर थोड़ी प्रकाश डाल सकते हैं, क्या बात? जी, फर्स्टली सर मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ का इसके ऊपर कोई असर होगा। एक डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट टीम है और डिफरेंट गोल है। अब जब आप अभी जस्ट हम वर्ल्ड कप खेल कर रहे हैं, जीत कर रहे हैं, तो उसका जो मोल है, और अभी जो हम वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं, ऑब्वियसली एक गोल है आपका, हमारी टीम का एक गोल है कि हमको क्या अचीव करना है।
तो उस लिहाज से आई थिंक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, तो डिफरेंट फीलिंग होगी। एंड बातचीत, जैसा मैं बोल रहा था कि कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है आगे साउथ अफ्रीका के लिए, कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि अभी टीम में नहीं है बट आगे जाके हमको हेल्प कर सकते हैं। तो ओडीआईज के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि 50 ओवर नहीं होना चाहिए, 40 ओवर होना चाहिए। थैंकफुली अभी आईसीसी के एनुअल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया है कि इट विल रिमेन 50 ओवर इवेंट। तो आपको पर्सनली क्या लगता है ओडीआईज के फ्यूचर के बारे में, और स्पेशली ये जो कहा जाता है कि 40 ओवर्स का होना चाहिए? नहीं सर, आई थिंक मेरे लिए आई मीन I grew up watching 50 over cricket a lot, and it remained a very integral part of my childhood. Whenever I think of, जब मैं वर्ल्ड कप मेरे दिमाग में आता तो सबसे पहले